A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. So let's begin today's class with the attendance on Kalam, because now you all are available as a registered student on Kalam. Alaikum assalam wa rahmatullah. So rather than going by name, I'll prefer going by serial number, because there might be a pronunciation problem while calling the names. So 1, 2, 3, 4, 5. Anissa. 6. 7 मिनट तक आ जाए तो ठीक है. 7, 8, 7 is the deadline. 9, 10, 11, 12, 11, 10 कौन है? फातिमा. 11 हारिस. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22, 23. Aina Mohan. Okay. Still 2 minutes हैं जी. So we'll wait till 2. Okay. Well, if you are hopefully well familiar with these contents, and today or by this week, hopefully, I'll try to cover in this lecture this much of the content, and maybe this much. The next week you will be a quiz of from descriptive analysis and correlation. Okay. Official quiz. That it is, please. Check your serial number. Gigi, check your serial number first. Or 1. 4, 5, 6, 7, 4. Sorry. Serial Serial number 12. Vira? Okay, good. 14. नहीं एक मिनट है. 1 to 10 में किसी का नजर आ रहा है? 1 to 12 में नहीं. 7 पे ठीक हो गया. और 10, 14 पे आप है. Okay. 19 आप है. Good. Anyone else? Still salmon going on. Definitely. तो फिजिकली क्लास में होंगे, मेंटली हो या ना हो. So finally it's 8G. Done with the attendance. थैंक यू जी. अच्छा जी, इस डाटा सेट के साथ वी आर वर्किंग विद
अल्लाह पाक कबूलो मंजूर करे, हमें भी दुआ में मिलती। इस तरह तो मैं मोबाइल रख जाया करूं और बस क्लास होगी। एनी हाउ जी, अच्छा इंपॉर्टेंट जो है जिसको मिस नहीं करना है वो है क्विज इन द नेक्स्ट वीक फ्रॉम these contents and hopefully these contents, hopefully, क्योंकि आज 2 घंटे की क्लास है तो we will cover a lot इंशाल्लाह। स्लो चलूंगा ताकि you can easily grasp or understand, थोड़ी वो रिवीजन भी होती रहेगी आपकी कि right from very beginning from where we started and where we want to end up etc etc। So, बात शुरू होती है डाटा से। एनालिसिस का कोर्स ही उसकी बैकबोन इज द डाटा, मींस इंफॉर्मेशन ऑफ द वेरिएबल फ्रॉम वेयर इट इज कमिंग, आइदर प्राइमरी और सेकेंडरी। तरतीब जरूर ज़हन में रहे whenever you are doing analysis, और तरतीब याद हो गई होगी इंशाल्लाह। कलेक्शन है, then what? Presentation है, good, then there is description, comparison if required, this is optional. Then model, then assessment, interpretation, etc. etc. These are the steps for that. For instance, ये डेली रेनफॉल रिकॉर्ड्स हैं इस्लामाबाद के, और सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आपका कंप्यूटराइज्ड डाटा प्रोसेसिंग सेंटर CDPC कराची में जो हेड ऑफिस है इनका, इस्लामाबाद में भी ऑफिस है इनका H8 के अंदर, ठीक है। लेकिन जो कंप्यूटराइज्ड डाटा प्रोसेसिंग, सारा डाटा पूरे पाकिस्तान में जितनी इनकी ऑब्जर्वेटरीज हैं उनसे रिकॉर्ड होके कंप्यूटराइज्ड डाटा प्रोसेसिंग सेंटर वालों के पास चलता है, एंड दे प्रोवाइडेड अस दिस डाटा टाइम सीरीज, इट्स डेली इंफॉर्मेशन। 1 जनवरी 1980 को इस्लामाबाद में इतने मिलीमीटर की बारिश रिकॉर्ड हुई, 2 जनवरी को इतनी, 3 जनवरी को इतनी। दीज आर द डेली records. And for the research purpose, because most of my research students, those who are working in the modeling of extreme events, are actually working on extremes. So these are not extremes. This is the normal behavior. Someday you will find rain and someday you will not find rain. But जो consequences होते हैं वो extremes के होते हैं, चाहे left हो चाहे right. So for that purpose, we extracted the extremes out of it. And one extremes is annual maximas. Annual maximum rainfall series in millimeter at Islamabad. This is the time series data again. Because variable along with time equidistant होने चाहिए time intervals. This is the time series information. These are extreme values. क्योंकि बुनियादी तौर पे there are plenty of types of floods. One type of flood is एक दिन बहुत ज्यादा बारिश हो गई, सिस्टम सस्टेन नहीं कर पाया और सैलाब। क्यूमुलेटिव भी आप कर सकते थे, डेली से आप बेशुमार वेरिएबल्स बना सकते हैं, बेशुमार वेरिएबल। एनुअल मैक्सिमा इज जस्ट वन काइंड ऑफ अ वेरिएबल, और जो आपके कोर्स में बुक है ना हॉस्किंग एंड वालेस की एल मोमेंट्स बेस्ड RFA, उसके अंदर एनुअल मैक्सिमा सीरीज को ही लेके पूरी बुक में मॉडलिंग की गई है। सो दे प्रेफर दैट एनुअल मैक्सिमा इज द सुटेबल और एडिक्वेट सीरीज in order to analyze extreme values at any time and space. ये टाइम वेरिएशन है इस्लामाबाद में। अगर इसके साथ से जेलम का डाटा आ जाता है, से अटक का डाटा आ जाता है, से लाहौर का डाटा आ जाता है, तो टाइम वेरिएशन भी हो रही है और स्पेस वेरिएशन भी। तो टाइम एंड स्पेस वेरिएशन के साथ भी मॉडलिंग कर सकते हैं, सिर्फ टाइम वेरिएशन के साथ भी मॉडलिंग कर सकते हैं। Because we are at the very beginning of the course, so हमने स्टार्ट किया था टाइम इंडिपेंडेंट सीरीज एनालिसिस। So let's not consider the variable of the first column of time
and pick the series जो time independent series है and then analyze और वो series आप ले आए जी यहाँ पे maximum annual maximum rainfall series. So collection wise अगर आप लिखना चाहते हैं तो this is the secondary data provided by the computerized data processing center CDPC head office Karachi. Rainfall are in millimeter. उसके बाद आपका continuous variable है quantitative continuous variable है. So when you decided the type of the variable, now you go with the description. ठीक है. Presentation और description simultaneously भी हो सकती है. One way of presenting the information was हम जी तस्वीर देखना चाहते हैं. We want to visualize the information. And for that purpose, let's go with histogram of the data with normal curve. If you want to visualize. Again, point to be noted by very dear students is if we are dealing with quantitative continuous variable, what options we have of the visualization. Option number 1, histogram. Option number 2, box plot. Let's first discuss the histogram. So, okay, so this is the histogram. और इस हिस्टोग्राम को अगर आप रीड करें तो ये बिन है. This is the range. X axis पे range है. From 20 to 40, we have 12 values in the data within the range of 20 to 40 millimeter. Y axis पे frequency भी हो सकती है, Y axis पे percentages भी हो सकती है. For this bin, which is from 40 to 60, अच्छा ये bin में ranges दी गई है. इस वजह से कि nature of the variable continuous है. अगर nature of the variable discrete हो या qualitative हो, so you can go with categories along with their frequencies. Just like gender में अगर आप male लिखते हो female लिखते हैं, and male कहते हैं female कहते हैं तो आप bar charts बना सकते हैं या आप pie charts बना सकते हैं, वो भी बनाएंगे. But if you are dealing with qualitative information, I thought that for visualization purpose, the options are to go with bar chart or pie chart. If you are dealing with a quantitative continuous variable, then the options are first is the histogram and the second is box plot. Now, what is histogram? This is a form of presentation of information. These are the classes actually on the x-axis. 20 से लेकर 40 तक कितनी values हैं डेटा के अंदर frequency classes along with their frequency 12 such values exist. के बाद 40 से 60 के दरमियान कितनी values हैं 12. अगली क्लास लेंगे अगला बिल लेंगे. That is again this one. 60 to 80 के दरमियान 4 observations हैं. 80 to 100 के दरमियान 4 observations हैं. इसी तरह आगे एक ऑब्जर्वेशन है, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है और 3 ऑब्जर्वेशन. यहां पे ये कोई कर सकता है. दिस इज सब्जेक्टिव इन नेचर. इट डिपेंड्स. छोटे बनाने चाहिए थे, बड़े बनाने चाहिए थे, 20 से 25 तक करना चाहिए था, 25 से 30 तक करना चाहिए था. ये आप कर सकते हैं, इसमें कोई ममानियत नहीं है. लेकिन इस टेबल को, इस टेबल is known as frequency distribution. और इसका दूसरा नाम क्या है? Group data. You group the data classes along with their frequencies. This form of presentation is called time series data. Ignoring the first column and concentrating on the second column alone, this is ungrouped data or raw data as is. Then table बना देते और this is the pictorial form of frequency distribution.
So pictorial form of frequency distribution is known as histogram. सर मैंने इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ सर आपने अटेंडेंस मार्क कर ली सर अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये जो अब बाकी लोग हैं इनकी अटेंडेंस मार्क करो जी नहीं सर तो सर इसमें जी उसमें होगी डायरेक्ट। एक आपकी 5 से 6 क्लास है, 5 से 5 50, और एक आपकी 6 से 6 50 क्लास है। सर इसमें एक रिक्वेस्ट ये है सर कि मैं सर अभी बैरियर से 7 से आ रहा हूँ ओके और मैं 4 बजे का निकला हूँ और शदीद रास्ते में ट्रैफिक भी होती है सारा कुछ होता है काफी सारे यहाँ पे वर्किंग प्रोफेशनल भी हैं जो कि ऑफिस से आ रहे हैं और सर हमारी रोड्स की कंडीशन है वो आपको पता है कि हर जगह पे इन्होंने सड़कें खोली हुई हैं तो इसको अगर आप 5:15 नहीं मेरा कहना है कि 20 तक अगर आप 20 तक मार्क करें तो हम लोग पहुंचेंगे अगर मॉर्निंग क्लास हो तो क्या खूबसूरत आपने लॉजिक पेश किया। आई क्योंकि सर acknowledge अनकंट्रोलेबल I acknowledge टेस्ट में जाहिर है कुछ रूल्स ऑफ बिजनेस हैं जो तय हैं। मैंने ये लिख के एचओडी और प्रिंसिपल को बता दिया कि मैं जब क्लास में किसी में भी जाऊंगा पहले 7 मिनट में अटेंडेंस लगाऊंगा जो रिकॉर्ड हो रही हो। इन केस ये प्रोसीजर आपको पसंद नहीं and you want relaxation of 20 minutes, write a proper application. Okay, 20 minutes, why are you not understanding? 20 minutes if somebody is coming late in a class of 50 minutes, approve करवा ले, मुझे कोई इशू नहीं है। If HOD has approved or will approve या डीन अप्रूव कर दे, मुझे तो कोई इशू नहीं है। मुझे वो कहे 5 से 7 की क्लास 6:30 से 7 पढ़ा दो बस, I'll be more than happy। असल में आप लोग ना एक है लाइव इधर से उधर, एक है लाइव उधर से इधर। नस्म में बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी, जो चीज अच्छी है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। हर चीज रिटन इन स्टोन है, मतलब जो कोर्स कंटेंट्स पढ़ाने हैं बारहा उसका तज़किरा होता है। जो एवेल्युएशंस आपकी जिस तरह होनी है वो तय है, मेरी मर्जी नहीं चली। सेम इज द केस क्लास ऑडिट्स में। अगर आपको मैं दिखाऊं, आप चूंकि प्रोफेशनल है ना, HOD and dean are part of this class and they can come online anytime in this class or physically. So I have already shared the complete mechanism of lecture delivery, content delivery. बता दिया अगले वीक में क्विज हो रहा है, ये सिर्फ आपको नहीं है उनको भी पता है। ये सारी चीजें अप्रूव्ड है, इसमें कोई ऑल्टरेशन मुझे तो कोई इशू ही नहीं है। जैसे वो मुझे कहेंगे मैं वैसे कर लूँ। अगर वो कहते हैं 30 मिनट्स रिलैक्सेशन दे दे, आई विल गिव यू 30 मिनट्स रिलैक्सेशन। वो कहते हैं नहीं आप क्लास के शुरू में अटेंडेंस मार्क ना करें, क्लास के एंड पे अटेंडेंस मार्क करें, मैं क्लास के एंड पे अटेंडेंस मार्क करूँ। बट यू हैव टू डिफाइन सम रूल्स ऑफ बिजनेस, कहीं ना कहीं जरूर, अदरवाइज तो विश लिस्ट विल नेवर एंड। इट इज अ नेवर एंडिंग। अब सब हमारे लिए मोहतरम है because you are the student of, legitimate student of an MS PhD degree program. So जैसे आप लोग कहेंगे with approval, हम लोग वैसे चले। So थोड़ा सा जी 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 एप्लीकेशन yes this is the right way, write an application। देखिए प्रॉपर करें ना जी, कि मैं फलां जगह से हम लोग आते हैं और ये इंटरप्शन होती है and this is frequent, so please सिस्टम में गुंजाइश पैदा। so सिस्टम में गुंजाइश देखिए, मिसाल के तौर पे यहां इस हद तक रिस्ट्रिक्शन है कि अगर मैं चाहूं ना कि आज की क्लास कल हो जाए तो आई हैव टू गेट इन राइटिंग अप्रूवल। तो सिस्टम मेंटेन करना, यू हैव टू मेंटेन अ सिस्टम। सिस्टम का मतलब ये होता है कि कोई अनड्यू पर्सनैलिटी किसी भी टाइम पे कोई इंटरवेंशन ना कर सके। With all the due regard and respect,
मैं आपकी सारी बातों को एक्नॉलेज करूं, बट प्लीज गो थ्रू प्रोसीजर। अप्रूव करा ले, मुझे कोई इतराज डेफिनेटली। इसमें क्या मसला? स्पेशल हम कर रहे हैं। हाँ जरूर करें, करें जरूर। ओके, अभी तो हम पढ़ाई की तरफ चले। अच्छा जी, यू आर विजुअलाइजिंग। अब हिस्टोग्राम को देख के आपने कुछ कंक्लूड करना है। आपकी जितनी असेसमेंट्स होंगी ना, वो एडिक्वेसी ऑफ द मेजर्स के रेफरेंस से, एक हिस्टोग्राम क्या क्या कुछ बता सकती है उसके हिसाब से चलेंगे। अब हिस्टोग्राम के ऊपर आपको क्लियर एक चीज नजर आ रही है, दैट इज द ब्लू लाइन एज अ रेफरेंस लाइन। ये रेफरेंस लाइन बुनियादी तौर पे नॉर्मेलिटी है। इफ अगेन आई रिपीट, ये सामने आपको क्या नजर आ रहा है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ वेरिएबल, जिसमें एक्स एक्सिस पे क्लासेस है, वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी है। इस डिस्ट्रीब्यूशन का बिहेवियर क्या ब्लू लाइन के बिहेवियर जैसा है या नहीं है एज रेफरेंस? ये ब्लू लाइन कहलाती है नॉर्मेलिटी, और नॉर्मेलिटी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट? Symmetry and tolerance together. Let's discuss first symmetry. What is the mean? 60.19. Agree? अटेंडेंस लगी है या नहीं लगी, मुस्कुराने में तो कोई कर्ज। दिस इज द मीन। आई एम श्योर यू आर नॉट हियर फॉर अटेंडेंस, यू आर हियर फॉर नॉलेज। यू आर नॉट हियर फॉर ग्रेड्स एक्चुअली, हियर फॉर नॉलेज। बेटा जैसे कहेंगे ना आप, अकॉर्डिंग टू वो वैसे, अगर अप्रूवल हो मुझे क्या था, लेकिन अगर आप इसी को ज़हन में रख के कंटेंट नहीं सुनेंगे ना, तो कंटेंट भी गुजर जाएगा, तो अटेंडेंस वैसे ही गुजर गई। Anyway, 60.19, let's have a cursor on 60.19. This is 60.19 in the data. अब आप बिल्डिंग्स को देखें, लेफ्ट और राइट ऑफ दिस कर्सर आर द पॉइंट्स मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। इधर का, दोनों का, इसका भी मिरर इधर इमेज नहीं नजर आ रहा, इसका भी इधर नहीं नजर, इधर से इसका इधर नहीं नजर आ रहा, इसका इधर नहीं नजर आ रहा, इसका इधर नहीं नजर आ रहा, इसका इधर। If the distribution around mean points are mirror image to each other, then distribution of the data is symmetrical. Otherwise, asymmetrical. So इसमें symmetry नहीं है, asymmetry है, जिसको क्या कहते हैं? Lack of symmetry is called? Lack of symmetry is called? Skewness. सारे मिलके बोले, lack of symmetry is called? Skewness. Skewness could either be negative or positive. तो शेप या तो ऐसी हो जाएगी या फिर ऐसी हो जाएगी। If the right tail is longer than the left tail, इस skewness को कहते हैं positive skewness. And if the left tail is longer than the right tail, तो इस skewness को कहते हैं तो यहां से आपको क्या नजर आ रहा है? तो आप क्या कहेंगे? Distribution of the variable is positively skewed. ये आपको कैसे पता चला? After visualizing the histogram. You visualize the histogram and concluded
फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा बोल दें या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा बोल दें, एक ही बात है. सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा इज पॉजिटिवली skewed. So you commented on the symmetry. Now comes kurtosis. Kurtosis relates to the peak of the distribution. और नॉर्मेलिटी में क्या होता है, चूंकि मिडल में मीन होता है, तो देखें फंक्शन जब मीन पे पहुंचता है अपनी पीक अटेन करता है. ये पीक उतनी ही है जितनी डिजायरेबल है, या उससे ज्यादा है या उससे कम. Now we are concentrating on the peak of the distribution at mean. Mean के ऊपर ही peak होता है. यहाँ पे आप देखिए डिजायर तो है जिधर कर्सर की टिप पकड़ी, बट ये देखें अब शार्पर, larger. So if the peak of the distribution of variable is sharper than the normal, technically उसको कहते हैं लेप्टोकर्टिक. लेप्टोकर्टिक कर्टोसिस है ना, तो लेप्टोकर्टिक शार्पर देन नॉर्मल. सॉरी व्हाट, lepto, lepto, curtic. If the peak of the distribution of the variable is sharper than normal, which obviously is in this case, then the frequency distribution has a behavior known as leptocurtic. एक फीचर है सिमेट्रिक एसिमेट्रिक. एसिमेट्री में दो ऑप्शंस हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, खत्म. अगला फीचर है पीक कैसी है. इज द पीक नॉर्मल, इज द पीक शार्पर देन नॉर्मल, और इज द पीक फ्लैटर देन नॉर्मल. तो शार्पर देन नॉर्मल को टेक्निकली कहते हैं लेप्टोकर्टिक. नॉर्मल को क्या कहते हैं, मीजोकर्टिक. और फ्लैटर को क्या कहते हैं, प्लेटी और प्लेटीकर्टिक. जो भी आप एक्सेंट बनाना चाहें, PLATTY इधर लिख देते. ठीक है. So after visualizing the histogram, we can conclude that the frequency distribution of the variable, which is annual maximum rainfall series in millimeter at Islamabad, is positively skewed and leptocurtic. ठीक हो गया. By visualizing the histogram of the data series, which is annual maximum rainfall series in millimeter of Islamabad, we can conclude that the frequency distribution is positively skewed and leptocurtic behavior. कोई शक किसी? Thank you. Graphical procedures are always informal. तस्वीरें हमेशा इनफॉर्मल होती हैं. So we need formal measures either to stamp that conclusion or to bring another argument that whether we are concluding in the right direction or not. Note कर लें. Positive.
किसने कहा नेगेटिव? पॉजिटिव। कोई शक? प्लीज 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 होल्ड होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन। बेटा जी आप इधर बैठे ना, आप इधर बैठे खोल। आप एक सीट छोड़ के बैठे, आप एक सीट इधर बैठे, आप एक सीट इधर बैठे, आप एक सीट इधर बैठे। अच्छा ये मैं एक्सपीरियंस की बुनियाद पे बिठा रहा हूं। होता क्या है, जब आप अपने तौर से कुछ बना लेंगे, वो आप पक्का कर लेंगे, वो आप पेपर में लिखेंगे और वो गलत होगा, तो फिर आप आर्ग्यू करेंगे। प्लीज कोई भी इशू हो, रेज दैट इशू क्लियर एंड लाउड हेयर। उसके दो फायदे होंगे, एक तो मेरे पे एहसान होगा, हो सकता है किसी और को समझ ना आ रही हो, और मैं रिपीट करूं, मैं 100 दफा भी कोई, आई एम नॉट इन एनी हरी टू बम्बार्ड द कॉन्सेप्ट्स। टारगेट क्या है? जिनका नहीं भी इंटरेस्ट, एटलीस्ट उनका इंटरेस्ट डेवलप हो, दे कैन बी एट सम स्टेज इंडिपेंडेंट एनालिस्ट। क्या? independent analyst. So please raise your hand if you have any query or misperception or confusion. Any query, please. जी प्लीज। क्यों है? वेरी गुड, थैंक यू। जब कभी भी हिस्टोग्राम बनाए, मीन के ऊपर आपने कर्सर रखना है। एक्स एक्सिस पे मीन किधर है? 60.19 है, थोड़ा सा आगे जाना चाहिए, खैर है इधर ही गुजारा कर। इसको थोड़ा सा ऊपर ले आए, इस लाइन इधर ले आए। अब आप देखें कि कर्सर की लेफ्ट साइड पे जो बिल्डिंग्स बनी हुई है, उसी का मिरर इमेज इधर होना चाहिए। नहीं है, वो दो बिल्डिंग देखें, इनका मिरर इमेज इधर बताएं किधर। इधर के मिरर इमेज उधर नहीं है, उधर के मिरर इमेज इधर नहीं है। एक तो तय हो गया कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट सिमेट्री, क्योंकि सिमेट्री के लिए डिट्टो जरूरी, डिट्टो कॉपी, कार्बन कॉपी। The distribution on the left side of the mean has a carbon copy of the distribution on the right side. तो पहले तो ये तय हो गया asymmetry। अब वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? तो पॉजिटिव में राइट टेल बड़ी होगी, लेफ्ट टेल छोटी होगी, और नेगेटिव में लेफ्ट टेल बड़ी होगी, राइट टेल छोटी। अब आप देखें राइट साइड पे, देखें आप बाहर, लेफ्ट साइड पे है कुछ नहीं, इधर तक वैल्यूज है। होना क्या चाहिए, अगर मेरे पास कुदरत हो, जो इस वक्त नहीं है, मैं इधर से इस लाइन को पकड़ूं और इधर ले जाऊं। जब मैं ये करूंगा, क्योंकि मुझे इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है ना, जब मैं ये करूंगा तो मेरी ये वाली जो टेल है, ये लंबी होगी, जिससे मुझे पता चला कि यहाँ पे पॉजिटिव स्क्यूनेस। अगर उस तरफ होता तो नेगेटिव स्क्यूनेस। ठीक, सेम इज द केस विद कर्टोसिस, कि अगर मेरा बस चले तो मैं इस रेफरेंस लाइन को इधर ले जाऊं। उससे क्या हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह की। कपड़ा को उतरेगा ना, इसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं। अब अपनी तरफ से डाल देंगे, इसको खींचे के ऊपर, अब वो शार्प कर देना आपने, या फिर बैठिए। क्यूनेस सबसे पहले सिमेट्री वर्सेस एसिमेट्री with respect to the distribution of the data around mean, and then comes how the peak of the distribution of data is behaving. तो हिस्टोग्राम को देख के दो चीजें कंक्लूड की जा सकती हैं, क्या? स्क्यूनेस और कर्टोसिस।
इनको मिला के क्या कहते हैं? शेप। कितने सियाने माशाल्लाह। This is one argument of describing the shape of a variable which is quantitative continuous in nature. We need other arguments. जैसे if you are a good student तो MS की आप CGPA दिखाते हैं, फिर आप BS की भी दिखाते हैं, फिर आप इंटरमीडिएट की भी दिखाते हैं, फिर आप मैट्रिक की भी दिखाते हैं. To stamp something, ये ऐसा ही है. So you want to stamp on the distribution of the data. रिव्यूअर कहता है ये तो इनफॉर्मल है, मुझे नहीं नजर आ रहा कोई डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि ग्राफिकल प्रोसीजर्स आर इनफॉर्मल प्रोसीजर्स. Graphical procedures are considered in statistics as an informal procedures. We need a formal procedure. So for that purpose, इसको करें मिनिमाइज और स्टैट में जाएं, बेसिक स्टैट में जाएं, डिस्प्ले डिस्क्रिप्टिव स्टैट में जाएं, स्टैटिस्टिक्स के अंदर जाके उसे कहें निकालो स्क्यूनेस और कर्टोसिस. ये फॉर्मूलाज हैं. These are the formal methods to judge the skewness and kurtosis of a variable which is quantitative continuous in nature. जब आप क्लिक करेंगे ओके ओके तो ये आपके पास आ जाएंगे. स्क्यूनेस का आंसर है 1.42, कर्टोसिस का आंसर है 1.57. अगर स्क्यूनेस का आंसर आए 0 तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरिएबल होती है सिमेट्रिक. अगर स्क्यूनेस का आंसर आए पॉजिटिव तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डाटा सीरीज होती है पॉजिटिवली स्क्यूड. और अगर स्क्यूनेस का आंसर आए नेगेटिव तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डाटा सीरीज होती है नेगेटिवली स्क्यूड. ठीक हो गया? कोई शक? अगली दफा से ना, अगर सबके पास लैपटॉप्स हैं या जिन जिन के पास लैपटॉप्स हैं वो प्लीज लेके आए, ताकि हैंड्स ऑन प्रैक्टिस सेशन इधर ही हो जाए. सली हो जाती है ना एक दफा. नोट करने वाला पॉइंट नोट कर लें रजिस्टर्स. स्क्यूनेस कर्टोसिस दोनों अनबाउंडेड एस्टिमेट्स. अनबाउंडेड का मतलब है इनकी लोअर लिमिट माइनस इंफिनिटी है और इनकी अपर लिमिट प्लस इंफिनिटी है. तो इंटरप्रिटेशन में ध्यान रखना है, द क्लोजर टू जीरो द मोर इज द सिमेट्री. डिपार्चर फ्रॉम जीरो इन आइदर डायरेक्शन increases the severity of asymmetry. जितना जीरो के करीब होंगे सिमेट्री होगी. किस में? वेरिएबल की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में सिमेट्री होगी. जितना जीरो से दूर होंगे पॉजिटिव या नेगेटिव, जितना होते जाएंगे उतनी सेवेरिटी इंक्रीज होती जाएगी. सो ये टर्मिनोलॉजी आपको पेपर्स में मिलेगी. मॉडरेटली स्क्यूड, severely skewed, approximately symmetric, absolutely symmetric, etc. etc. जितना जीरो के करीब है उतनी सिमेट्री है. Departure from zero in either direction increases the severity of asymmetry, which is called skewness. अब आपको हिस्टोग्राम ने क्या बताया था? पॉजिटिवली स्क्यूड है. स्क्यूनेस क्या कह रही है? पॉजिटिवली स्क्यूड है. तो दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं. तो यू आर गिविंग टू आर्गुमेंट्स to strengthen your conclusion regarding the symmetry of the distribution of a quantitative continuous variable. Same is the case with kurtosis. Zero means mesocultic. Positive value indicates leptocultic behavior. Negative value indicates platycultic behavior. And it has the same behavior as skewness.
because it is an unbounded estimate. Closer to zero means mesokurtic. Departure from zero in either direction increases the severity of kurtosis. Sharpness या flatness को increase करेगा. जी. स्टूडेंट्स और कर्टोसिस को नॉर्मलिटी के लिए 0 होना जरूरी है. जी. Ideally, for a normal distribution, skewness should be 0 and kurtosis should be 0. आपने जी. वो लिख रहा था एक जगह पे लिखा हुआ था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में स्टैंडर्ड डिवीएशन 1 होती है और कर्टोसिस 3. दिस इज कंसीडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. बिल्कुल सही. क्या खूबसूरत सवाल. Really. Lucky to have seen this in challenge students. किताबें अगर आप पढ़ेंगे जब तक ये सॉफ्टवेयर नहीं आए उससे पहले की जितनी किताबें हैं जब उन्होंने स्क्यूनेस कर्टोसिस का फार्मूला जिन्होंने दिया था उन्होंने ये कहा था स्टैंडर्डाइजेशन हुई थी ना कि स्क्यूनेस को 0 पे जज करना कर्टोसिस को 3 पे करना और ये इंटरप्रिटेशन की स्क्यूनेस 0 सिमेट्री departure from 0 you kurtosis 3 हो तो means greater than 3 हो less than 3 हो. सॉफ्टवेयर को ये पसंद है क्योंकि इधर 0 याद रखना इधर 3 याद रखना पहले ही मेमोरी बहुत स्ट्रांग होती है. उन्होंने इस फॉर्मूले में -3 करके इसको भी 0 पे स्टैंडर्डाइज किया ताकि टेंशन ही ना रहे. तो R यूज करें, पाइथन यूज करें, SPSS यूज करें, बीटा. जब आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं ना तो 0 आपका रेफरेंस. इनसे पहले की जितनी किताबें हैं और हो सकता है उनके बाद की किताबें हैं उनमें आपको 3 मिलेगा कर्टोसिस रेफरेंस रेंज के तौर पे फॉर इंटरप्रिटेशन. लेकिन उस पे नहीं जाना क्योंकि आप कंप्यूटिंग के स्टूडेंट हैं और आप कोई ना कोई टूल यूज करके कंप्यूटिंग करेंगे ना कि फॉर्मूला और कैलकुलेटर यूज करके कंप्यूटिंग करेंगे. वेरी गुड क्वेश्चन. नहीं, नो 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 नो, वो कुछ और है. तो अभी हमने 2 चीजें बहुत अच्छे तरीके से सीख ली. Visualization of the frequency distribution of a quantitative continuous variable and formal measures of skewness and kurtosis to conclude through another argument about the shape of the distribution. So description में 3 चीजें आती हैं. Location, dispersion, shape. Alhamdulillah, we covered shaping very well. आगे चलते. Location. काफी आसान. लोकेशन किस लिए निकालते हैं? कंडेंस करने के लिए. ये इतनी ज्यादा ऑब्जर्वेशन है. वी नीड अ सिंगल रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू for the data so that all the observations has a tendency towards that center. ठीक है. और डिस्पर्शन किस लिए होता है? क्योंकि हर वैल्यू मीन नहीं है. हाउ मच इज द डिस्पर्शन फ्रॉम मीन. अगर मीन को आप सेंटर मान लेते हैं तो हाउ मच ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड. देखिए ब्लू लाइन को देखें ना. ये सारी की सारी आप बिल्डिंग ब्लॉक्स को देखें कि मीन के अराउंड डिस्ट्रीब्यूशन है जिसको आप डिस्पर्शन कहते हैं. तो व्हाट इज द एवरेज डिस्पर्शन? जो मोस्ट पॉपुलर मेजर ऑफ लोकेशन है वो कौन सा है? अरिथमेटिक मीन. और मोस्ट पॉपुलर मेजर ऑफ डिस्पर्शन कौन सा है? स्टैंडर्ड डेविएशन. If we calculate the mean and standard deviation. स्टैट के अंदर, बेसिक स्टैट्स के अंदर डिस्प्ले डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आप उसे कहते हैं भाई मीन निकालो, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, ओके करो. सो अरिथमेटिक मीन इज 60.19 and standard deviation is 35.51.
So on the average annual maximum rainfall series in millimeter at Islamabad is 60.19 with an average dispersion of 35.51 millimeter. Ideally standard deviation कम है तो डिस्पर्शन कम है, बड़ा है स्टैंडर्ड डेविएशन तो डिस्पर्शन अराउंड मीन डिस्पर्शन ज्यादा है। उसको कहते हैं क्लस्टरिंग। जैसे आप लोगों की जब ग्रेडिंग होती है तो एवरेज इज अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस, कि जब कभी भी किसी को बताया जाता है ना कि आपके इतने नंबर है, एक बड़ा ऑब्वियस सवाल स्टूडेंट का ये होता है एवरेज क्या है, बिकॉज वो अपनी जजमेंट करना चाह रहे हैं कि वेयर डू आई स्टैंड। इसमें दो जजमेंट्स करना चाह रहे हैं, ये प्लीज थोड़ी सी फाइन लाइन है बिटवीन लोकेशन एंड डिस्पर्शन। एक वो ये जज करना चाह रहे हैं कि आर वी ऑन द एवरेज और बिलो एवरेज और अबव एवरेज, हाउ मच आई एम डेविएटिंग फ्रॉम द एवरेज। ये दो चीजें वो जज करना चाह रहे हैं कि मैं क्या मीन के ऊपर हूं, मीन से नीचे हो, तो अपरेंट कंपैरिजन पता चल जाएगा कि अगर आपका मीन जो है वो 60.19 है तो आपको ये पता है जी 73 जो है वो 60.19 से बड़ी वैल्यू है, 44 छोटी वैल्यू है, 93 बड़ी वैल्यू है, 25 छोटी वैल्यू है। तो ये कंपैरिजन में आपको पता चल जाएगा एम आई ऑन द मीन, एम आई बिलो मीन और एम आई अबव मीन, हाउ मच आई एम डेविएटिंग फ्रॉम मीन, कितना दूर हूं मैं मीन से विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड डेविएशन। ये लिख ले, हाउ मच आई एम डेविएटिंग, आई एम से मुराद है वैल्यू, हर वैल्यू पुकार पुकार के पूछ रही है हाउ मच आई एम डेविएटिंग फ्रॉम मीन विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर आपको मेरी बात में हंसी है तो हंसने में कोई हर्ज नहीं है। I am the normal or usual human being as all of you. Namaaz time. So we will meet at 6:10 inshallah. ठीक है जी, 20 मिनट की ब्रेक। See you after 20 minutes.
I don't actually have a base. ये क्या सब कुछ भी बता दीजिए कि ये इंसान में होगा जितना खुशी उतना फंसाएंगे और
ब्रॉडकास्ट किए थे इसका किसको दिया क्या तो पता नहीं मैं नहीं पता You have still 4 minutes. Welcome back. Okay. किस टाइप का होगा ये अभी तक कौन सा नेक्स्ट That's a very nice question. I go on quiz. Right, good. जी मॉक एक्सरसाइजेस कराऊंगा आपको घबराइए अगले वीक ही करें जी नेक्स्ट वीक में क्विज है नेक्स्ट वीक में 3 घंटे होते हैं एक आधा घंटा थोड़ी आप अपने आप को प्रिपेयर करें
I'll have a first mock quiz, ठीक है, फिर गैप होगा दायरा, फिर फाइनल फॉर्मल क्विज होगा। डेफिनेटली कैसे हो सकती है, नहीं कैसे हो सकते हैं, ये भी जाती है स्टूडेंट के साथ। कतई तौर पे इस टीचर के ज़हन में ये नहीं है कि उसने ओए, Okay, there is an issue. अभी वो 6 से 6:50 आज 2 घंटे की क्लास है ना? जी जी करें, रिक्वेस्ट सारी करें, सारी रिक्वेस्ट लिख के ना सीआर को। हाँ बेटा पढ़ना यकीन करें जॉब के साथ इस दुनिया का मुश्किल। जी जी पूछे करें। Program coordinator office is the right person to talk. She is the right person. टीचर का कोई रोल ही नहीं है बेटा। Beta, try to understand the hierarchy. Again, it is in the recording. Try to understand the hierarchy. There is a dean, then there are departments, then there are representatives. Then there are we are there to execute the plan given by science to me. Sorry. So you have a program coordinator office, you have an HOD office, you have a dean office. तीन आपके पास options हैं. If someone is not accommodating you, that means your demands are too ambitious. So I told you the right options. चले अभी आप इस पे आते हैं ना. Heading दें sigma rules of normal distribution. Okay, sigma rules of normal distribution. इसको कहते हैं, इस रूल को 68, 95, 99.7 rule. This is also known as sigma rule of normal distribution. Normality ने जान नहीं छोड़नी, सीधी सी बात है आपकी, और linearity throughout the applied courses related to statistics. Mean और standard deviation की किसी को कोई शक शुबा हो? Why we calculate mean? Why we calculate standard deviation? We calculate mean to find a single numerical value as a representative of the data, so that all the observations has a tendency towards that center. Standard deviation tells you how much is the average dispersion around mean. ये चीज याद रखनी है. You cannot ignore the word mean. डेविएशन की जब भी बात की जाएगी, डिस्पर्शन की जब भी बात की जाएगी, वो किसी सेंट्रल पॉइंट या किसी नंबर से होगी. और स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूला में ही है x minus x bar. So you are taking deviations from mean, squaring it, summing it, taking average, taking square root. Square root इसलिए लेते हैं कि यूनिट में वापस आ जाए, अदरवाइज वेरिएंस नहीं रहता. मीन का पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर वैल्यू की पोजीशनिंग का पता चलता है कि ये वैल्यू से ऊपर है, नीचे है,
या ऑन द मीन, जिसको कहते हैं ना एग्जैक्ट मीन है, बिलो मीन है, अबव मीन, एंड हाउ मच इट इज डेविएटेड फ्रॉम मीन विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन से कितनी दूर, कितनी नजदीक विद रिस्पेक्ट टू सिग्मा। ये बात अभी बिल्कुल समझ नहीं आया क्या, थोड़ी देर में समझ। लोकेशन के थ्रू आपने डिस्क्राइब किया, स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू भी आपने डिस्क्राइब किया। मीन मेजर ऑफ लोकेशन, स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर ऑफ डिस्पर्शन, और मेजर ऑफ शेप आप पढ़ चुके, स्क्यूनेस और कर्टोसिस। हिस्टोग्राम के थ्रू आपको पता चल गया कि ये जो एनुअल मैक्सिमम सीरीज है ना, ये नॉर्मल नहीं है, क्योंकि सिमेट्री भी नहीं है, कर्टोसिस भी नहीं, मीजोकर्टिक भी नहीं। और यही चीज आपको इस स्क्यूनेस और कर्टोसिस ने भी बताई। लेकिन अगर नॉर्मेलिटी होती, अगर नॉर्मेलिटी होती तो एक रूल है, सिग्मा रूल। सिग्मा रूल क्या कहता है? आसान सा रूल है, लेकिन इसकी एप्लीकेशन बहुत ही ज्यादा है। कभी आपको समझ आएगा आपकी ग्रेडिंग कैसे होती है? कभी I introduce you one relative grading criteria। अगर आपको किसी भी डाटा, आपके पास एक वेरिएबल है जो क्वांटिटेटिव भी है और कॉन्टिन्यूअस भी है, अगर आपको उसका मीन पता हो, जो हमें पता है क्या है 60.1, और आपको स्टैंडर्ड डेविएशन पता हो जो कि हमें पता है 5.51 मिलीमीटर है, आप x बार माइनस एस निकाल सकते हैं। कैलकुलेटर से मोबाइल चेक करें। 34.68 और x बार प्लस एस भी निकाल सकते हैं 95.70 मिलीमीटर। और इसका एक इंटरवल भी बना सकते हैं, जिसकी लोअर लिमिट हो x बार माइनस एस और जिसकी अपर लिमिट हो x बार प्लस एस। तो वो इंटरवल है 24.68 से लेकर 95.70। इंटरवल बन गया, उसको कहते हैं वन सिग्मा इंटरवल। वन सिग्मा एक्स बार माइनस एस है और एक्स बार प्लस एस। इसी तरह आप टू सिग्मा इंटरवल बना सकते हैं। एस को टू से मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स बार से सब्ट्रैक्ट करते हैं और एक्स बार माइनस 3s बना सकते हैं। बनाए फिर गलत लिखा मुझे आगे आवश्यक है, ये हो भी सकता है। किसी को कंप्यूटिंग में कोई इशू हो गया, हाउ टू कंप्यूट वन सिग्मा इंटरवल, टू सिग्मा इंटरवल, थ्री सिग्मा इंटरवल with respect to any data which is quantitative continuous in nature। किसी को कोई मसला हो तो बोले।
कोई मसला नहीं, क्लियर है। स्टैटिस्टिशियंस सारी दुनिया के इस बात पे एग्री करते हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएबल की जो क्वांटिटेटिव कॉन्टिन्यूस है वो नॉर्मल हो, पहली शर्त उन्होंने लगा दी कि वो नॉर्मल हो, तो एक्स बार माइनस एस और एक्स बार प्लस एस जो है वो मिडल 68% ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन को कवर करते हैं, 68.27%। दो वैल्यूज के दरमियान ये आपकी टोटल डिस्ट्रीब्यूशन है, यहां से लेकर यहां तक 100%। मीन से शुरू करें, मीन माइनस सिग्मा, मीन प्लस सिग्मा। इधर सिग्मा लिखा है, हमने एस लिखा है क्योंकि सैंपल से जब कैलकुलेट करते हैं तो म्यू की जगह एक्स बार आ जाएगा, सिग्मा की जगह एस। पॉपुलेशन से कंप्यूट करेंगे तो म्यू और सिग्मा। इन दो पॉइंट्स के दरमियान एक्स एक्सिस से ऊपर का फंक्शन के नीचे ये सारा एरिया जो है ये 68.27% मिडल 1 सिग्मा इंटरवल के दरमियान। क्या बात, 1 सिग्मा इंटरवल अगर आप निकालें, शर्त क्या है, वेरिएबल क्वांटिटेटिव कॉन्टिन्यूअस हो और नॉर्मल हो। तो क्वांटिटेटिव कॉन्टिन्यूअस नॉर्मल रैंडम वेरिएबल के लिए अगर आप 1 सिग्मा इंटरवल निकालें तो वो मिडल 68.27% डिस्ट्रीब्यूशन को कवर करता है। 2 सिग्मा इंटरवल निकालें तो वो 95.45% मिडल डिस्ट्रीब्यूशन को कवर करता है, और 3 सिग्मा इंटरवल निकालें तो 99.73% ऑफ द मिडल डिस्ट्रीब्यूशन कवर होता है। रिपीट कर लें, मीन को मरकज मानना है, मीन से ट्रैवल होता है नॉर्मली, लेफ्ट हो या राइट। नॉर्मलिटी का कॉन्सेप्ट मीन से शुरू है, डिस्ट्रीब्यूशन से बनता है। अगर वेरिएबल क्वांटिटेटिव कॉन्टिन्यूअस होने के साथ साथ नॉर्मल भी है तो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लें। 1 सिग्मा इंटरवल के दरमियान, दरमियान से क्या मुराद है, एक्स एक्सिस से ऊपर फंक्शन के नीचे का मिडल एरिया है। ये मिडल, ये सिर्फ एरिया नहीं है, ये मिडल एरिया। ये एरिया होगा 68.27%। 2 सिग्मा इंटरवल के दरमियान होगा 95.45% और 3 सिग्मा इंटरवल के दरमियान होगा 99.73%। अब इसका फायदा क्या, क्या फायदा होगा वो मैं तो बता देता हूं। अब ये सारे इंटरवल्स कैलकुलेटेड है, इधर ये सारे, ये जो वैल्यू है 73.941, ये किस इंटरवल में है, इस इंटरवल, यानी कि अगर इसकी पोजीशनिंग की बात की जाए तो ये यहां पे कहीं पे लाई कर रही। So you can easily point out the positioning of any value with respect to mu and sigma. इंडस्ट्री में ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। We visited once, अब तो बहुत सोफिस्टिकेटेड सिस्टम्स आ गए हैं, पहले बहुत मैनुअल सिस्टम्स होते थे। मैनुअल सिस्टम ये होते थे, वो कोक और पेप्सी की जब बॉटल फिलिंग्स होती थी तो जैसे वो एक डॉक्टर नहीं देखता, आपका एक्सरे लगाता है, पीछे से लाइट जलती है तो लाइट, वो पीछे ऐसे लगे होते थे, बॉटल आगे से गुजरती थी और स्क्रीन के ऊपर एक्चुअल में बॉटल बनी होती थी और उसके ऊपर उतना निशान होता था कि इसकी फिलिंग कितनी होनी चाहिए। सामने एक पर्सन बैठा होता था ये ऑब्जर्व करने के लिए, 3 लोग बैठाते थे कि किसी एक से अगर मिस भी होगी
उस लाइन पे देखें कि जो फिलिंग है उस लाइन के पैरेलल चल रही है या नहीं, जिस बॉटल की नहीं होती थी उठा के बाहर। अब उन्होंने प्रोसेस ऑटोमेट कर दी कि जो फिलिंग हो रही है रेगुलर बॉटल में वो कितनी होती है, 250 ml या 500 ml या 1000 ml। अच्छी कंपनीज वाले साथ में 0.05 ml भी लिख देते हैं, जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। इतनी वेरिएशन अलाउ है। तो सिस्टम खुद बहुत बीप करता है अगर 3 सिग्मा के बियॉन्ड। इसका क्या मतलब है कि जो मिडल प्रोडक्शन हो रही है 99.73%, वो या उधर चली गई है या इधर चली गई है, और एनी वैल्यू बियॉन्ड 99.73 could be considered as an outlier, कि वो मिडल 99.73% डिस्ट्रीब्यूशन से बिलोंग नहीं करते। इवन कुछ स्टैटिस्टिशियंस तो ये कहते हैं कि 95.45 से बियॉन्ड भी जो है वो 5% आउटलायर्स हैं, जिसमें से 2.5% लेफ्ट टेल में है, 2.5% राइट टेल। मिसाल के तौर पर मैं समझाता हूँ आपकी ग्रेडिंग कैसे हो। एक तरीका ग्रेडिंग करने का है, आपकी क्लास के पेपर चेक करें, 100 में से उसका मीन स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें और 1 सिग्मा को बी है, आपने 68.27% क्लास को बी दे, बाकी कितने बच गए, जिनमें से 16 राइट साइड पे होंगे, 16 लेफ्ट साइड। आपने इसको ग्रेड कर लिया बी, इसको दे दे बी प्लस, इसको दे दे सी प्लस। टोटलिटी में आपने 95.45% स्टूडेंट्स कवर कर लिए। इनको मिल गया बी, इनको मिल गया बी प्लस, इनको मिल गया सी। आगे चले गए, इनको मिल गया ए, इनको मिल गया सी। और अगर कोई बियॉन्ड है जो कि कितना होगा 0.27%, 100 में से एक भी नहीं, उनके बियॉन्ड क्या है, you can easily claim इसमें मेरी दुनिया में जो सेट करना बेस्ट करेंगे। क्यों? 95.45 आपने कवर कर लिए, बाकी कितने बचे? 5%, जिनमें से 2.5% उधर है और 2.5 उधर है। इसका मतलब है 100 में से 2 स्टूडेंट्स को हुआ गिविंग। In fact, people are setting within themselves a very tough aspect. लेकिन ये रूल एग्जिस्ट करता है, अगर क्वांटिटेटिव कॉन्टिन्यूअस नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है, उसका मीन स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के उसकी सिग्मा लिमिट्स बनाए, तो मिडल 68% डिस्ट्रीब्यूशन 1 सिग्मा में कवर होती है, 2 सिग्मा में 95% होती है और 3 सिग्मा में 99% होती है। वो कौन सी रेनफॉल है जो एक्सट्रीम की भी एक्सट्रीम है, जो या 95 को अगर आप बेंचमार्क कर लेते हैं तो इसके बियॉन्ड चली जाए, लेफ्ट साइड पे ड्राउट है, राइट साइड पे एक्सट्रीम रेनफॉल, या 99.73 को डिक्लेयर कर। तो ये मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन आर वेरी इंपॉर्टेंट मेजर्स ऑफ लोकेशन एंड डिस्पर्शन। पॉइंट फॉलो हो रही, बात समझ आ रही है कि नहीं समझ? So this criteria can be used as the criteria to find out outliers in the data. डेटा में आउटलायर्स हैं कि नहीं है, लेकिन इस रूल को इंप्लीमेंट करने की शर्त क्या है? गुड गुड, नॉर्मल होना चाहिए डाटा। अगर नॉर्मल ना हो तो क्या करें? तो नॉर्मल हो तो लगाए, पुश लगाए, भी जा सकते हैं। अगर देखें 95% मिडल डिस्ट्रीब्यूशन से मैच नहीं करते
तो 2.5% ऑन द राइट एंड 2.5% ऑन द लेफ्ट वो भी आउटलायर्स। ये आपके अपने ऊपर होता है कि आप क्या क्राइटेरिया सेट करते हैं टू बिगिन अ वैल्यू टू बी कंसिडर्ड एज एन आउटलायर। जी जी, अगर आपको नहीं पसंद कि जी नहीं 2 सिग्मा नहीं, 3 सिग्मा रखना है 3 सिग्मा रख लें, 2 सिग्मा रखना है 2 सिग्मा, 6 सिग्मा रखना है 6 सिग्मा रख लें। डिपेंड्स ऑन द प्रोसेस हाउ सोफिस्टिकेटेड इट इज। जैसे मिसाइल है ना, वो पिन पॉइंट करते हैं, उनको तो एक्यूरेसी चाहिए 1000% जिसको कहते हैं। ठीक है, उसमें 1 किलोमीटर का इधर उधर होना जो है ना, वो अच्छा खासा मसला क्रिएट करता है। 1 किलोमीटर बहुत बड़ी रेंज होती है। ठीक है, तो ये डिपेंड्स ऑन द प्रोसेस यू आर इन्वेस्टिगेटिंग एक्चुअली। ठीक हो गया, सिग्मा रूल की समझ आ रही? When can we implement the sigma rule? When the frequency distribution of a quantitative continuous variable is normal. अगर नॉर्मल नहीं है तो तो क्या करें? एक थ्योरम है जिसको कहते हैं सेंट्रल लिमिट थ्योरम। क्या नाम है उसका? और से बोले, सेंट्रल लिमिट थ्योरम। ये थ्योरम क्या कहता है? अगर सैंपल की डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल ना हो, सैंपल को जन्म दिया है पॉपुलेशन ने, इसका मतलब है आपकी पेरेंट पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन अननोन है। यू डोंट नो द पेरेंट पॉपुलेशन ऑफ द सैंपल। You can consider the distribution to be normal if dealing with large sample size. You can consider the distribution of the population जिसने सैंपल को जन्म दिया। पॉपुलेशन से सैंपल आया ना, सैंपल पॉपुलेशन नॉर्मल, सैंपल नॉर्मल, पॉपुलेशन एबनॉर्मल, सैंपल एबनॉर्मल। अगर पॉपुलेशन नॉर्मल, सैंपल नॉर्मल, तो आप ये रूल लगा सकते हैं। अगर पॉपुलेशन अननोन, you don't know but whether the population distribution is normal or not, you still can assume the distribution to be normal if dealing with large sample size. ये जो चीज, ये जो थ्योरम इसको सपोर्ट करता है उसको कहते हैं सेंट्रल लिमिट थ्योरम। सेंट्रल लिमिट थ्योरम ये कहता है कि अगर सैंपल साइज लार्ज हो जाए तो डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल एज्यूम करके यू कैन अप्लाई। यहां एक ऑब्वियस क्वेश्चन है, यस यस, रिलेटिव ग्रेडिंग के क्राइटेरियाज अगर आप देखें, ठीक है, पढ़ें, तो उसमें सबसे पहले देखिए क्या नॉर्मेलिटी होगी। अगर नॉर्मेलिटी नहीं होगी तो आपको ढेर सारे पेपर्स मिलेंगे स्टिल अप्लाइंग दोस टेक्निक्स व्हिच आर टू बी यूज्ड फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन टू बी कंसीडर्ड एज। क्यों? सेंट्रल लिमिट थ्योरम। अगर लार्ज सैंपल साइज से डील कर रहे हैं, आप नॉर्मल एज्यूम करके चल सकते, एज्यूम कर। पॉपुलेशन नोन और अननोन, पॉपुलेशन नोन है या अननोन होगी। अब मैं थोड़ा ज्यादा दरवेशी की ऊपर वाली मंजिल पे चला गया। असल में आप ये जो आपके पास डाटा है ना, ये सैंपल डाटा है, इसको किसी पॉपुलेशन ने जन्म दिया, किसी पॉपुलेशन से आया। पॉपुलेशन नॉर्मल होती, ये नॉर्मल होता। पॉपुलेशन नॉर्मल नहीं है, हम कहते हैं अननोन है, हमें नहीं पता। अब क्या है, हमें क्या पता? जिसने इस सैंपल को जन्म दिया, यानी पॉपुलेशन लार्ज ना हो, the size of the sample you are dealing with for analysis has to be not large. सैंपल का साइज लार्ज हो तो आप सैंपल की डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल कर सकते हैं।
आसान कर देते हैं। ये सैंपल क्या नॉर्मल है? बोले ना, नहीं नॉर्मल, खोल के बोले। स्केटोसिस देखे नजर नहीं आ रहा, परेशान नहीं होते हैं, कौन सा नंबर काट रहे हैं, खोल के बोले नहीं नॉर्मल। अगर आप ये रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर दे कि 36 का सैंपल साइज लार्ज है, तो आप इन रिजल्ट्स को इग्नोर करके यू कैन एज्यूम द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस डाटा टू बी नॉर्मल। ठीक है, अब ये सवाल पैदा होगा कि जो 36 को आपने कहा लार्ज है, जस्टिफाई। 36 में 36 वैल्यूज है, so you have to justify that is this 36 to be considered as a large or not. To decide a sample size to be large, ऐसे ही होना चाहिए, exact ऐसे तो pinpoint सवाल। अगर आपने रेक्टर का इंटरव्यू करना हो तो कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे आपको? वो शिकायतों वाली लिखनी हो तो फौरन हो जाता है। खुद वैसे इंटरव्यू करना, यू वांट टू टेक अ नॉर्मल इंटरव्यू regarding NUST, how is going and what is the vision of the rector and कहां से उन्होंने जर्नी स्टार्ट किया था। आप ये ईमेल लिखे ना कि आई वांट टू हैव ऑल द इंफॉर्मेशन, और मैं मीडिया से हूं, मैं तो देखते हैं कितने देर बाद आपको टाइम मिलता है। लेकिन अगर आपने साइंस के किसी फैकल्टी मेंबर से लेना है तो इट वुड बी इजी। ये डेली रिकॉर्ड से हम डील कर रहे हैं, ये डेली रिकॉर्ड से। तो 1980 से लेकर 2015 तक कितनी वैल्यूज हैं? प्लेंटी, प्लेंटी। लेकिन जो ही हमने वेरिएबल चेंज किया, दुनिया में कोई हार्ड एंड फास्ट फॉर्मूला रूल नहीं है टू सेट फॉर एनी वेरिएबल के इससे ऊपर लार्ज, इससे नीचे स्मॉल। इट डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है 3 सोर्सेज की बुनियाद पे, टाइम, लेबर, कॉस्ट। आइडियली तो मेरे पास इस्लामाबाद का 100 साल का डाटा होना चाहिए। नहीं थी गेजिंग अगर 80 से पहले, तो मैं क्या करूं, मेरा तो कसूर नहीं। नो 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 नो। हाउ मच इज द अवेलेबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन? जब भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है तो उसके पीछे 3 फैक्टर्स होते हैं। टाइम कितना लगा उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने, लेबर कितनी चाहिए उसको कलेक्ट करने, और कॉस्ट कितनी। सेंसस कराते क्यों 10 साल बाद, क्यों नहीं हर साल कराते? रिसोर्सेज नहीं है इतने। दिल तो हर एक का करता है हर साल सेंसस। It is not easy to deal with the complete population of a country. You have to justify based on time, labor and cost that the given information I have in hand has to be considered as small or large. साइंटिफिक आंसर यही है, मेरी हर एक को एडवाइस यही होती है, मैं खुद भी इस पे अमल करता हूं कि ऐसा ही करें। लेकिन क्या करूं, किताबें भी मौजूद हैं। शेल्डन एम रॉस आप खोल लें, वो कहता है 30 को बेंचमार्क कंसीडर कर लो। कोई भी सैंपल साइज 30 या उससे बड़ा है तो उसको लार्ज डिक्लेयर कर दो, और 29, 28, 27, 20, 15 है तो उसको स्मॉल डिक्लेयर कर दो। अब ये लिखा है बुक में तो मैं डिनाई नहीं कर सकता। यस, लेकिन ये ट्रू होगा कॉमन वेरिएबल्स के लिए। मसलन ब्लड प्रेशर ले रहे हैं, CGPA ले रहे हैं, हाइट ले रहे हैं, वेट ले रहे हैं, उनके लिए तो ट्रू होगा। हर वेरिएबल के लिए ट्रू नहीं होगा। You will find plenty of books in statistics जो 30 के बेंचमार्क के ऊपर लिखी गई हैं, इंटरनेशनल और नेशनल। है सही बुक, में बता देता हूँ, ज़ाहिर बीइंग ए टीचर ये मेरी जिम्मेदारी है। बट ये कॉमन वेरिएबल्स के लिए तो ट्रू है, ये 50 भी हो सकता था,
ये 100 भी हो सकता था, ये 200 भी हो सकता था। लिहाजा जब कभी भी रिसर्च में क्लेम करना चाहें, एज अ रेफरेंस जरूर यूज कर लें, बट ट्राई टू जस्टिफाई इट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लेबर एंड कॉस्ट। ठीक हो गया? मसलन आपने डेली डाटा से डील करना था तो आपके पास तो ऑब्जर्वेशंस की कमी नहीं थी, आराम से वही इस्लामाबाद की प्रेसिपिटेशन जो है वो लार्ज सैंपल, आपने खुद उसको कहा हमने एनुअल मैक्सिमा सीरीज लेनी है, तो अब वो स्मॉल रहा। ठीक हो? अच्छा जी, लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द डे इज स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन या उर्फे आम में उसको क्या कहते हैं? जी स्कोर्स। ये सारा बहुत अच्छा लग रहा है हमें, ये जो हमने सिग्मा रूल्स पढ़े और हमने मीन पढ़ा और स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ा, इसमें एक ही मसला है, और वो क्या है कि जब कभी भी मुझे किसी वैल्यू की पोजीशनिंग के बारे में कुछ डिसीजन करना है, मुझे ये याद रखना पड़ता है कि इस सीरीज का मीन क्या है और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, तो कंप्यूटेशनली इट इज नॉट इजी। हमें एक क्राइटेरिया चाहिए कि हम इस चीज को आसान बना दें। वो क्राइटेरिया क्या है? अगर आपके पास x हो, x हो नॉर्मल, x से क्या बराबर है? जब मैं कहता हूं ना वो नॉर्मल हो, इसका मतलब है वो क्वांटिटेटिव कॉन्टिन्यूअस तो हो ही, नॉर्मल हो ही है। हर वैल्यू में से उसका मीन माइनस कर लो और उसके स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर दो, तो आपके पास एक नया वेरिएबल आ जाएगा जो जी स्कोर्स हो। कैसे कर सकते हैं? ये मैक्सिमा आपके पास है, आप इसके स्टैंडर्डाइज स्कोर्स निकाल लें। ये है स्टैंडर्डाइज का ऑप्शन। ये स्टैंडर्डाइज के ऑप्शन में जाएं, इनपुट कॉलम कौन सा है? मैक्सिमा है। स्टोर रिजल्ट्स इन C3, कॉलम 3 में रख दो। क्या करो? हर वैल्यू में से मीन को सब्ट्रैक्ट कर दो और स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर दो, तो ये आपके पास आ गए जी स्कोर्स। इसको क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, you transformed your original variable into another variable, लेकिन मर्जी नहीं है कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन करें, कंपल्शन है कि x में से हर वैल्यू में से मीन माइनस हो, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड, यानी कि 73.941 माइनस मीन ऑफ दिस सीरीज डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। आगे 44.821 ऑफ दिस माइनस मीन ऑफ दिस सीरीज डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। समझ आ गई? कंप्यूटिंग की समझ आ गई? इसका फायदा क्या? Mean of z will always be 0. That mean of the transformed variable, which is z score, will always be 0. Always, हमेशा क्या करने की जरूरत है? And standard deviation of z will always be इसने सहूलियत कर दी। क्या सहूलियत की? हर पॉजिटिव वैल्यू मीन से ऊपर है, हर नेगेटिव वैल्यू मीन से नीचे। कुछ याद रखने की अब जरूरत नहीं है। Every value of z score with a positive sign is above me, and every value with a negative sign of z score is below me. ना सिर्फ ये आसानी होगी, बल्कि ये जो इंटरवल, ये इंटरवल हो गया -1 से +1, ये इंटरवल हो गया -2 से +3, ये इंटरवल हो गया -3 से +3। अब तो और ये आसान हो गया। ये वैल्यू 1 सिग्मा में है राइट साइड पे, ये वैल्यू 1 सिग्मा में है लेफ्ट साइड पे,
ये वैल्यू 1 सिग्मा के करीब है राइट साइड पे, ये वैल्यू उतनी ही दूर है लेफ्ट साइड पे, ये वैल्यू 2 सिग्मा के भी बियॉन्ड है, कैन बी कंसिडर्ड एज एन आउटलायर। किसी भी वैल्यू की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन जज करना बहुत ही आसान हो गया है थ्रू दिस ट्रांसफॉर्मेशन। Z-scores provides you a standardized version of the original variable so that you can locate the value with respect to its mean and standard deviation. ना सिर्फ आपको ये पता चल जाएगा कि वो अबव मीन है या बिलो मीन है, बल्कि आपको ये भी पता चल जाएगा how much a value is deviating from mean with respect to standard deviation. So Z-scores can also be used for the detection of outliers. Any value going beyond plus minus 2 or plus minus 2.5 और प्लस माइनस 3, ये आपके अपने ऊपर है, आपने जो भी क्राइटेरिया सेट करना है वो आउटलायर है, क्योंकि वो मिडल 95% से मैच नहीं कर रही। मिडल को नहीं भूलना, क्योंकि मीन मिडल से स्टार्ट। ठीक हो, कोई मसला परेशान? ये सारा कुछ जो हमने पढ़ा, ये इमारत एक assumption पे खड़ी है। वो assumption क्या है? डाटा नॉर्मल होना चाहिए, क्योंकि अगर डाटा नॉर्मल नहीं है तो मीन रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, और अगर मीन रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, और ये सारी इमारत धड़ाम से आके नीचे गिर जाए। लेकिन ये गिरती क्यों नहीं? क्योंकि अंकल सेंट्रल लिमिट थ्योरम always come to support you, that consider or assume the sample size to be large and normal and apply it. समझ आ रही रिसर्च में? लेकिन अगर आप कहें कि मीन मैंने रिप्रेजेंटेटिव नहीं रखना और मीडियन रखना है, तो फिर बात और हो जाती है। ग्रेड ए लेना तो खैर आसान कभी भी नहीं है क्योंकि ये जब क्राइटेरिया लग जाता है, आप ये भूल रहे हैं कि 1 सिग्मा को बी मिल जाता है रिगार्डलेस ऑफ द मीन। 1 सिग्मा को जब बी मिल गया तो इसका मतलब है 69% क्लास फारग है। वो तो बी की दौड़ में ही, ए की दौड़ में ही नहीं है, तो बी है सारे। अब उसके राइट साइड के बाकी बच गए हैं कितने? 32%। इसका मतलब है 16% इधर है और 16% इधर है। 100 में से 16 सिर्फ इधर है, जिनमें से अभी कुछ ने बी प्लस भी लेना है। तो 95 से स्टार्ट है, 95 के बियॉन्ड कितने हैं? 5%। उनमें से 2.5 इधर, 2.5। Yes, yes, yes. This is one of the toughest criteria in relative grading system. But that criteria exists. तो मैंने स्कूल में क्लास पढ़ाई थी थियर को, वो यूनिट का यही अप्लाई करो, मैंने कहा ठीक है, कोई लाभ नहीं है। लेकिन इधर नहीं करेगा। इधर में साइंस में दिस इज नॉट डन बाय टीचर फॉर इंटरप्रिटेशन। साइंस में पॉसिबल, साइंस में आउटलाइन क्लस्टर एनालिसिस, क्लासिफिकेशन, वो कभी आप तो मैं सिखा दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये रूल्स हमें तंग जरूर करते हैं, मुझे भी तंग कर। मेरा सर 7 बजे तक 6:50 हो गया, नॉट फाइंडिंग आउट द क्लास। क्यों? वी आर बाउंड टू गो टिल 7। रूल्स लगते बुरे हैं, लॉन्गर रन में अगर आप फॉलो कर जाते हैं तो फिर जब जन्नतुल फिरदौस मिलती है, फिर सारा भूल जाता है कि पीछे किन सख्तियों से गुजर के गए थे। ये दुनिया के असूल हैं, ये मेरे आपके चेंज करने से नहीं होने और ना ही ये बदलने। किसी पर्सन की लाइफ पढ़ के देखें, अपने वालिद से पूछ लें
हाउ हार्डशिप थ्रू ही हैज गॉन थ्रू ड्यूरिंग हिज लाइफ, और आज आप जो ये एंजॉय कर रहे हैं लाइफ, इसके पीछे कितने जान जोखों में डली। सो ये असूल तय है, ठीक है। अच्छा जी, कोई सवाल है तो प्लीज। We have covered the descriptive analysis with respect to quantitative continuous data, including collection, presentation, description में location, dispersion, shape, and including visualization through histogram. इसमें अब आपके करने का काम क्या है? मिसाल के तौर पे ग्राफ्स के अंदर जैसे बॉक्स प्लॉट बनाना, तो ये बॉक्स प्लॉट बनाए इसी वेरिएबल का, तो ये आप देखेंगे ये क्या है। बॉक्स प्लॉट बुनियादी तौर पे ये विस्कर क्वार्टाइल 1 होता है, Q1, ये विस्कर मीडियन होती है, ये विस्कर Q3 होता है। और कैसे पता चलेगा, ये होमवर्क देने लगा हूं। स्टैट में जाएंगे, बेसिक स्टैट में जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव स्टैट में जाएंगे, इसी सीरीज के अब वो स्टैटिस्टिक्स नहीं लगाएंगे जो हम निकाल चुके हैं। निकालें फर्स्ट क्वार्टाइल, मीडियन, थर्ड क्वार्टाइल, इंटर क्वार्टाइल रेंज। ओके करें, ओके करें इसको। Q1 है 32.70 मिलीमीटर। Q1, अच्छा जल्दी फाइंड आउट नहीं करना चाहते। हाँ, we started the class at 6:10 instead of 6:10. कोई बात नहीं, पहले मिनट में कहो। इतने बात हो जाएगी। ये पूरा डाटा है 100%। इसको 4 बराबर हिस्सों में तकसीम करना है। ऐसे नहीं तकसीम करना जैसे बंदर ने रोटी बांटी, बराबर हिस्सों में तकसीम करना। तो यू नीड 3 कट पॉइंट्स, एक हिस्सा, एक हिस्सा, एक हिस्सा, एक हिस्सा, सारे 25-25 हिस्से। इसको कहते हैं Q1 क्वार्टाइल 1, इसको कहते हैं Q2 जो मीडियम की होता है, और इसको कहते हैं Q3 जो थर्ड क्वार्टाइल। Q1 से नीचे 25% एरिया होता है, Q1 से अबव 25% एरिया होता है, एरिया का डिस्ट्रीब्यूशन। Q2 से नीचे 50%, Q2 से ऊपर, Q3 से नीचे 75%, Q3 से ऊपर 25%। 32.70 मिलीमीटर वो रेनफॉल है। 25% डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएबल की जिससे नीचे, ये वो वैल्यू है जिसके बिलो 50% डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसके अबव 50% डिस्ट्रीब्यूशन। ये वो वैल्यू है जिसके अबव 25% है, जिसके बिलो 75% है, Q3। ठीक है, इंटर क्वार्टाइल रेंज है Q3 माइनस Q1। Q3 और Q1 को माइनस कर लें तो ये मिडल 50% ये मिडल 50% इंटर क्वार्टाइल रेंज है। ठीक है, और इन क्वार्टाइल्स की 1, 2, 3 की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बॉक्स प्लॉट कहलाता है। ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, ये above 25% है, ये below 25% है, तो ये एक जितनी नहीं है। ये भी ये जाहिर कर रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा इज एसिमेट्रिक। Visualization, those 2 stars, outliers. Data has high outliers according to box plot. Okay. इस तरह की, हाँ इस तरह की जटिल। Any query or question? अच्छा अच्छा, प्लीज। अच्छा, अटेंडेंस में ये है, ये नेक्स्ट वीक मुझे याद कराइएगा। अभी जो कलम पे इशू आ रहा है वो ये आ रहा है कि
इन्होंने एक ही सेशन जनरेट किया है, 5 से 5:50 वाले, 6 से 6:50 वाला जनरेट ही नहीं किया। देयर इज अ कंफ्यूजन के उनके बकौल आज 1 घंटे की क्लास है, टाइम टेबल के मुताबिक आपकी 2 घंटे की क्लास है। वो सेशन जनरेट करा के, और आप सब लोग जो आज 6 से 6:50 आए हुए हैं, इनकी अटेंडेंस फॉर श्योर लगेगी, घबराना नहीं। जी बोले बोले, ठीक हो गया जी। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीक। क्विज फॉर्मल होने से पहले आपका घबराने की जरूरत नहीं है, तैयारी पूरी होनी चाहिए। मॉक क्विज होगा, मिड से भी पहले एक मॉक मिड टर्म दूंगा ताकि आपको ये पता हो कि मैंने कैसे एवेल्युएशन कर, एक दफा प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है। लिहाजा अगले वीक में छुट्टी नहीं करेगा बेटा, टोटल 3 होंगे।